Okay, so I hope the screen is visible to everyone. So let us discuss this some more examples on that same part. Okay, so question 1 is like this: find the Fourier transform. Find the Fourier transform of f of x is equal to e raised to minus mod x. Okay, so in solution, yes, now I want answer from your side कि कैसे सब कुछ आपको सॉल्व करना है. Okay. So in every example, if it is not mentioned in the question that use it's like that कि cosine use करो, sin use करो, अगर ये wording नहीं आती है तो उस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि in that question first of all you have to check whether that given function is even function or odd function, because depend on even and odd you have to write that formula. If it is even consider cosine, if it is odd consider sine. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वैसे स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट चेक whether it is even function, odd function or neither even nor odd function. ठीक है, so to check that to check whether it is even or odd, consider f of minus x. आपको हमेशा f of minus x से स्टार्ट करना है. f of minus x बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे x था वहाँ पे minus x रख दो, so which is equal to minus of minus mod x. Okay, and we know that in general mod of minus x, okay, what we know that in general mod of minus x is always equal to mod x, है ना. ये आपको पता ही है कि अगर आप x इक्वल टू 4 भी लेते हो, है ना, सो मॉड ऑफ माइनस 4 एंड मॉड ऑफ 4 दोनों सेम ही आते हैं. सो इन जनरल मॉड ऑफ माइनस x इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड x. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट e रेज टू माइनस मॉड x, करेक्ट, एंड विच इज इक्वल टू f ऑफ x. ये तो आपका स्टार्टिंग का ही फंक्शन है. सो इट मीन्स व्हाट दिस इंप्लाइज, द f of minus x is equal to f of x. Therefore, f of x is even function. So if it is even function, then to calculate its corresponding Fourier transform, you have to even function में क्या अप्लाई करना है. Okay. Okay. Now, is it clear now? Okay. Maybe some network issue is there. Okay, so if f of x is even function, then you have to consider the Fourier cosine transformation. So by Fourier cosine transformation क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, व्हाट इज दैट फॉर्मूला. Fourier cosine transformation का फॉर्मूला क्या है, fc ऑफ लैम्बडा. ये आपको पता है इवन में कोसाइन का यूज करना है, ऑड में साइन का यूज करना है, तो वो टेबल बस आप याद रखो. ओके, शो दैट टेबल अगेन एंड अगेन, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ओनली दिस टेबल. यूनिट में बस एक टेबल ही प्रिपेयर, लैंग्वेज चेंज होती जाएगी आपकी. हाँ, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस टेबल. एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दिस टेबल. के लिए fc, साइन के लिए fs, like that. Okay, now we'll continue. So fc of lambda, what is that formula? 0 to infinity, यहाँ पे आता है f of u sin lambda u du. Okay, so next step. but आपको क्या पता है, what is your f of u? f of u is f of x is e raised to minus mod x. f of u क्या होगा, e raised to minus mod u. So which is equal to 0 to infinity e raised to minus mod u sin lambda u du. Correct? अरे यार, sorry. It is cos. Okay. Now next is what? हाँ, अभी मुझे आपसे आई जस्ट वांट द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स. इसके आगे जाने के लिए एनीवन नोज द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स. क्या है डेफिनेशन मॉड एक्स की, इसको पता है क्या? इसके
इसके आगे सॉल्व करने के लिए आई डोंट वांट दिस मॉड बेसिकली। अगर आपको हाँ, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ, हाँ करेक्ट, very good. So it means mod x takes value x if your x is greater or equal 0. If your x is positive, it takes value minus x when your x is less equal 0. This is the definition of mod x. Okay. So if I use this definition, here you will get which is equal to 0 to infinity e raised to, अभी आपको पता है ये जो रेंज आपके पास यहाँ पे आ रही है ये 0 to infinity रेंज है। 0 to infinity रेंज में आपका फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। सो इफ योर रेंज इज फ्रॉम 0 to infinity, in this range this mod u is replaced by u only. So here you will get e raised to minus u only cos lambda u du. फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये mod u फंक्शन था, बट ये mod u फंक्शन आपको 0 to infinity रेंज पे लेना है। 0 to infinity रेंज पे लेना है मतलब ग्रेटर इक्वल 0 पे लेना है, और ग्रेटर इक्वल 0 पे x की वैल्यू x ही आती है, सेम वैल्यू आपको मिलती है वहां पे, इसलिए mod u की वैल्यू u आ जाएगी। नाउ इसके आगे there is one standard formula, that is 0 to infinity e raised to minus ax cos of bx dx is equal to a upon a square plus b square. And if you compare these two example, so in this case you have to take a equal to 1, compare देखो आप, and b equal to lambda. So just put these values, you will get in next step you will get equal to 0 to infinity, yeah sorry लिमिट सॉल्व करना है ना, तो इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे a मतलब 1, सो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। बुक में यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, डोंट वरी। There are many definitions for Fourier transform. ठीक है, so this is your example number 1. We'll take one more example, question 2. Find the Fourier cosine transform. Find Fourier cosine transform of f of x is equal to, it takes value x when x lies between 0 to 1 by 2, it takes value 1 minus x when your x lies between 1 by 2 to 1, and it takes value 0 when x is greater than 1. Okay, so in solution, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली बोला कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का पार्ट तो है ही नहीं, है ना। डायरेक्टली हाउ टू अप्लाई द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। सो बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या फॉर्मूला आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज एफ सी of lambda equal to 0 to infinity f of u cos lambda u du. Now anyone tell me the value of f of u in the interval 0 to infinity. क्या लिखना है आगे, I just want the value of f of u but in the interval 0 to infinity. हाँ, क्या लिखना होगा बोलो, करेक्ट, 0 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 टू इन्फिनिटी जो इंटरवल है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी लोअर लिमिट 0 है और यहाँ पे भी लोअर लिमिट 0 है। ओके, एक्स ग्रेटर देन मतलब ये जा रहा है टेंस टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी ये जो इंटरवल है फंक्शन के लिए, ये इंटरवल 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कैसे, पहले आपको क्या करना होगा, 0 से स्टार्ट करके 1/2 तक जाना होगा, तब आपके पास वैल्यू आती है x, बट यहाँ पे लिखते समय आपको u में लिखना है, तब आपके पास वैल्यू आती है u, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। बाद में आप 1/2 से जाते हो, 1/2 से 1 तक जाना है, तब आपके पास वैल्यू आती है 1 माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस यू। फिर लास्ट में आपको 1 के आगे जाना है, मतलब
1 to infinity, बट उस टाइम पे वैल्यू आपके पास क्या है 0, so you will get this. ठीक है, now just solve this integral. so equal to, इंटीग्रल में अलग अलग लिख लेता हो तो आपको, so first इंटीग्रल में how you solve this first integral, you have to apply here generalized rule of by parts. जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स में आपको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन आइडेंटिफाई करना है. ओके, फर्स्ट फंक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इट इज अ फंक्शन व्हिच डेरिवेटिव वैनिशेस आफ्टर सम स्टेप्स. सबको पता है कि यू एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद जीरो होने वाला है, देयरफॉर वी कॉल इट एज फर्स्ट फंक्शन. सो दिस बिकम योर फर्स्ट फंक्शन. ऑटोमेटिकली जो भी है अदर दैट बिकम सेकंड फंक्शन. यहाँ पे भी आप देखो 1 माइनस यू का डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद जीरो होने वाला है, देयरफॉर वी कॉल इट एज फर्स्ट फंक्शन. जो भी रिमेनिंग है दैट इज योर सेकंड फंक्शन, एंड ये तो जीरो ही है. ओके, हाँ, नाउ व्हाट इज योर जनरलाइज रूल ऑफ बाय पार्ट्स. फॉर्मूला आपका क्या है, यू वैसे ही रख दो, वी का आता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, यू का डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन, प्लस साइन, यू का डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन, कंटिन्यू करो. ठीक है, सो इफ आई अप्लाई दिस रिजल्ट हियर, तो क्या करना है, पहले यू को वैसे ही रख दो, मीन्स यू एज इट इज. सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन लैम्बडा यू अपॉन यू, देन यू माइनस साइन, और फिर क्या करना है, जो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू करो, तो यू का डेरिवेटिव आता है 1. सेकंड का इंटीग्रेशन कंटिन्यू करो विच इज माइनस कॉस लैम्बडा यू अपॉन, सॉरी यहाँ पे ना लैम्बडा था, है ना, विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव क्या आता है नीचे लैम्बडा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इंटीग्रेशन लैम्बडा स्क्वायर. एंड नेक्स्ट वैल्यू जो होगी, नेक्स्ट वैल्यू के लिए आपको 1 का डेरिवेटिव लेना होगा विच इज 0, तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है. सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ यू इंटू कॉस लैम्बडा यू डी यू, एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1/2. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अभी नेक्स्ट का भी आपको मैं दिखाता हूँ, सेम लॉजिक है. नेक्स्ट इंटीग्रल, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन, फिर से फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 माइनस यू, सेकंड का आपको लिखना है इंटीग्रेशन विच इज साइन लैम्बडा यू अपॉन यू, है ना, फिर आता है माइनस साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आता है -1, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन विच इज माइनस कॉस लैम्बडा यू अपॉन, यहाँ पे फिर से मैंने यू ही लिखा है, इट इज लैम्बडा एंड इट इज लैम्बडा स्क्वायर, एंड योर लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 से लेकर 1 तक. एंड थर्ड 0 है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट मी फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस. पहले आप साइन का सॉल्व कर लेता हो और फिर बाद में हम क्या करते हैं, अपर एंड लोअर लिमिट पुट करते हैं. सो विच इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है यहाँ पे, u साइन लैम्बडा u अपॉन लैम्बडा माइनस माइनस प्लस कॉस लैम्बडा u अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1/2 प्लस ओके 1 माइनस u साइन लैम्बडा u अपॉन लैम्बडा, 3 टाइम्स माइनस मतलब ये माइनस है, कॉस लैम्बडा u अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, लिमिट्स फ्रॉम 1/2 to 1. ओके, चलो नाउ जस्ट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ओके, प्लीज फोकस हियर. अपर लिमिट मतलब क्या, 1/2 पुट करना है, तो जहां पे u था वहां पे 1/2 रखो. क्या मिलेगा, 1/2 साइन 1/2 इंटू लैम्बडा इज लैम्बडा बाई 2, नीचे लैम्बडा एज इट इज, प्लस कॉस लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा स्क्वायर. ये होता है आपका अपर लिमिट इसका. नाउ माइनस पुट लोअर लिमिट, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 तो ये भी 0 होगा, और ये क्या आएगा, cos 0 इज 1 मीन्स हियर यू विल गेट 0, फर्स्ट वैल्यू इज 0 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. ओके, अभी सेकंड पे आते हैं, प्लस अपर लिमिट पुट करते हैं 1, तो ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस u इक्वल टू 1, सो हियर यू विल गेट cos लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. नाउ माइनस लोअर लिमिट 1/2 पुट करो, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, सो 1/2 साइन लैम्बडा बाई 2 अपॉन लैम्बडा माइनस अगेन हियर 1/2 कॉस लैम्बडा बाई 2 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. ठीक है, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस.
ओके, अभी मैं सारे साइन को सॉल्व कर लेता हूँ. सो क्या क्या मिलेगा फाइनली, 1/2 साइन λ/2 अपॉन लैम्बडा प्लस कॉस, ये लिख लो फिर से, λ/2 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. सेकंड लाइन पे माइनस कॉस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1/2 साइन λ/2 अपॉन लैम्बडा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दैट इज कॉस λ/2 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. चलो ओके, अभी क्या हो रहा है कैंसल, आई थिंक दिस टर्म कैंसल विद दिस टर्म. एम आई करेक्ट ना, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना, चेक करो एक बार. नाउ दिस, okay, cancel with this term. So what is remaining? Here you will get only cos λ/2 minus 1 upon lambda square. हो गया. This is your Fourier cosine transform. ठीक है, हो गया. ऐसा एक क्वेश्चन आता है, अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करते हो तो कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी. ठीक है, तो जितने भी इंटीग्रेशन आने दो, आपको सॉल्व हो जाएगा. ओके, ऑलमोस्ट टॉपिक हो गया आपका, बस एक लास्ट इनवर्स के क्वेश्चन लेने. इंटीग्रेशन की वजह से क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूं. ओके, नाउ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए, और भी आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस देने. ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, और भी इसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है जो आपको स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली डीयूएस रूल से सॉल्व करने. ओके, आई विल टेल यू दैट फर्स्ट. सो दिस इज टोटली न्यू पार्ट फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. नाउ योर नेक्स्ट टाइप, आई कैन से थर्ड टाइप. फर्स्ट क्या था, इंटीग्रल का था. सेकंड क्या था, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था. अभी थर्ड क्या है, नाउ हियर यू हैव टू कंसीडर द एग्जांपल्स ऑन डीयूएस रूल. ठीक है, एग्जांपल्स ऑन डीयूएस रूल. तो आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज मीन बाय डीयूएस रूल. डीयूएस का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली द डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. ओके, और इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, और दिस इज द मीनिंग ऑफ डीयूएस, दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. ओके, और इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, यूजिंग दिस रूल, गिव एज अ रिमार्क, note, using this rule we can find derivative of integral function. Okay, or we can find value of the integral. दिस इज द यूज ऑफ डीयूएस रूल. ठीक है, तो सिंपली क्या है कि डीयूएस रूल का यूज करके आप यहाँ पे इंटीग्रल फंक्शन का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आप उसको ही आगे स्ट्रेच करते हो, ओके, फर्दर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आल्सो. ओके, नाउ लेट मी डिफाइन व्हाट इज दैट रूल, है ना, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो दिस. सो लेट मी डिफाइन अ रूल, theorem या formula. क्या है वो रूल? So consider a integral function. Consider integral function. Let me save this. Otherwise, आपसे मैं शेयर करता हूँ ये फाइल. So consider the integral function, that is I of alpha equal to integration from a to b, where a and b are constant, f of x alpha dx. ठीक है, suppose this is your given integral, then by
DUIS rule, that is differentiation under integral sign. आपका फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, y कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि ये I आपका अल्फा का फंक्शन है. Therefore the derivative of I with respect to alpha equal to integration from a to b, है ना. क्या फॉर्मूला सिंपल है, क्या करो बस आपको चाहिए I का डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा I का डेरिवेटिव. ओके, फॉर्मूला क्या है? ये जो f फंक्शन है या ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ओके, यू हैव टू रिप्लेस दिस वैल्यू बाय इट्स पार्शियल डेरिवेटिव. So just replace this f by the partial derivative of this function with respect to alpha. That is dabba by dabba alpha of this function. Just take the partial derivative of this function. That is your DUIS rule. इतना सिंपल फॉर्मूला. ओके, हाँ, अभी मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ. So let me take that first question. क्वेश्चन नंबर 1. अभी DUIS के क्वेश्चन में आपको मैं सेपरेट करके देने वाला. तो अभी इनिशियली हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है. यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस ऑन DUIS. ठीक है, अभी इस टाइप के अंदर ले रहा हूँ, पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉर्ट करके देता हूँ कि कैसे सारे फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं. ठीक है, सो द ओनली पार्ट विच इज डिफरेंट इज दिस. बाकी सारे क्वेश्चन में सेम लॉजिक है. यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फोरियर के फॉर्मूले सेम लॉजिक से यूज करने, बट इंटीग्रेशन DUIS रूल से सॉल्व करना है. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्टली व्हाई वी नीड दिस DUIS रूल. ओके, सो लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जांपल. फाइंड इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fs ऑफ लैम्बडा equal to 1 upon lambda e raised to minus a lambda, where lambda is positive. So here we have to calculate the inverse sine transform, है ना, inverse sine transform of this given functions. So identification is not there, directly उन्होंने formula दिया. Okay, so let me start that solution. So in solution, okay, उन्होंने बोला है क्वेश्चन कि साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करो, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म. So can anyone tell me that formula? What is inverse sine transform? What is inverse sine transform? That is f of x is equal to, formula आपका क्या है? 2 by pi 0 to infinity fs of lambda sin lambda x d lambda. I will show you here. Inverse मतलब इस कॉलम में, but sin मतलब इस यहाँ पे. देखो, f of x equal to 2 by pi 0 to infinity fs of lambda sin lambda x d lambda, वही मैंने यहाँ पे लिया है. ओके, हाँ, now just put this value. What is given? fs of lambda is given, so which is equal to 2 by pi 0 to infinity 1 by lambda e raised to minus a lambda, हाँ, और क्या है, sin lambda x d lambda. Now can anyone tell me how you solve this integral? इसी क्वेश्चन में आपको रीजन समझ में आएगा why we need this DUIS rule. So can anyone tell me how you solve this integral? Anyone? Can you try? Can you tell me? Can you give me the hint? DUIS rule का तो मैंने बोला ही है, मैं DUIS rule से सॉल्व करने वाला हूं, बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि is there any other way to solve this integral? This is my question. Except DUIS rule, is there any other way? Okay, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पे? कौन से टर्म की वजह से आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? 1 by lambda. आपके पास इसके लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट ही है ना, e raised to minus x sin bx dx. आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट था, बट 1 by lambda की वजह से यू कैनॉट अप्लाई दैट फॉर्मूला. ठीक है, और फिर ये डिफिकल्ट हो रहा है. यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, है ना. ये भी एक फंक्शन है 1 by lambda, e raised to minus a lambda भी एक फंक्शन है, sin lambda x भी फंक्शन है. ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका जो इंटीग्रेशन का नॉलेज है या जितने जितने फॉर्मूलेस मैंने आपको दिए थे, ओके, उनमें से किसी भी फॉर्मूले से अगर वो इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपको DUIS रूल से ही सॉल्व करना है. ठीक है, दिस इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई. या मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली सारे DUIS के क्वेश्चन दे देता हूँ. ओके, आप अगर उनमें से कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू ट्राई द DUIS रूल. दैट इज ऑल्सो द पॉसिबल वे.
ठीक है। सो जिनको इंटीग्रेशन अच्छे से आ रहा है उनको ये इजीली गेस होगा, बिकॉज दिस इंटीग्रल यू कैनॉट सॉल्व दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग योर रेगुलर अप्रोच। किसी भी रेगुलर अप्रोच से आपका इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको एक अलग फॉर्मूला चाहिए, दैट इज नथिंग बट डी वाइस रूल। सो हियर वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। आपको यहाँ पे ये जो इंटीग्रल दिखाई दे रहा है ये आपको डी वाइस रूल से सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ स्पेशली डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स प्लीज focus here, because this method is totally new for you. Okay, how you get this integral using DUIS rule? So by DUIS rule, ठीक है, what is that rule? रूल सिंपल है, लेफ्ट साइड में आता है उसका डेरिवेटिव, राइट साइड में क्या होता है, फंक्शन को रिप्लेस करना है उसके पार्शियल डेरिवेटिव से। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये जो नीचे आ रहा है वही विद रिस्पेक्ट टू dx, और फंक्शन क्या है, ये जो भी दिखाई दे रहा है पूरा 1 बाय लैम्बडा e रेज टू माइनस ए लैम्बडा साइन लैम्बडा x डी लैम्बडा। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 to infinity. So can anyone tell me the derivative of this with respect to x? ये डेरिवेटिव क्या आएगा with respect to x? Anyone? Cos lambda x into lambda. ठीक है, हाँ, those who don't know, आप यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव लेना है with respect to x. ओके, इसका मतलब क्या है, जिस फंक्शन में x नहीं है वो मेरा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो आप देखो 1 बाय लैम्बडा में x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसलिए मैं बाहर लिख लेता हूँ। e रेज टू माइनस ए लैम्बडा में भी कहीं पे x नहीं है, इसलिए उसको भी मैं बाहर लेने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज द ओनली वेरिएबल, है ना। एंड साइन लैम्बडा x का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस लैम्बडा x। बट डेरिवेटिव में आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट का पार्ट है डेरिवेटिव में, जो ब्रैकेट का पार्ट है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन में चेन रूल क्या होता है, आपको डिवाइड करना है। ये चीजें आप याद रखो, इसमें कंफ्यूजन होता है ना। इंटीग्रेशन में जब चेन रूल क्या होता है, आपको डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, और डेरिवेटिव में चेन रूल क्या होता है, आपको डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म। तो लैम्बडा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या है, लैम्बडा, एंड रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज डी लैम्बडा। नाउ यू कैन कैंसल दिस लैम्बडा, ये सब कुछ इसके लिए किया था, because I don't want that lambda, and here you will get 2 by pi 0 to infinity। अभी आपको वही मिलेगा जो आपको इनिशियली चाहिए था, e रेज टू माइनस ए लैम्बडा cos लैम्बडा x डी लैम्बडा। हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये 1 बाय लैम्बडा की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने डिवाइस रिजल्ट का यूज करके उसको डिलीट किया है। नाउ यू विल गेट दिस, और अभी आपके पास इसका रिजल्ट ही है। व्हाट इज दैट रिजल्ट, फॉर्मूला क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेज टू माइनस ax cos ऑफ bx dx इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो a की वैल्यू a लेनी है और b की वैल्यू क्या लेनी है आपको, लैम्बडा। इफ यू कंपेयर दिस टू, देन यू विल गेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट df बाय dx, एंड ऑन राइट हैंड साइड यू विल गेट 2 बाय पाई मल्टीप्लाई बाय, ये क्या मिलेगा आपको, a अपॉन, मतलब a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, a की वैल्यू a बट b की लैम्बडा है ना, दिस। ठीक है, यस, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये तो बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। कहीं पे तो मैंने रॉन्ग लिया, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, क्योंकि ये x आएगी, क्योंकि अगर dx होता है तो x का कोएफिशिएंट लेना है, तो यहाँ पे d लैम्बडा है, मतलब लैम्बडा का कोएफिशिएंट मुझे लेना है, विच इज x। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। भाई मैं बोल रहा हूँ कि आगे लैम्बडा में कैसे जा रहा है। ओके, नाउ इट इज करेक्ट, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो, नाउ दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको वो सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, राइट साइड में x का फंक्शन है तो dx को राइट साइड में लेके आ जाओ, df इज इक्वल टू 2 बाय पाई, ये अगर x का फंक्शन है तो यहीं पे आपको क्या लिखना होगा, dx लिखना होगा।
नाउ दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। df का कोएफिशिएंट f में यहाँ पे है ही नहीं, मतलब 1 है, और dx का कोएफिशिएंट x में। टेक द इंटीग्रेशन। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप इंटीग्रेशन लेते हो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना होगा, विच इज c। ओके, नाउ f, df का इंटीग्रेशन f इक्वल टू 2 बाई पाई, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, अभी के लिए मैं बाहर ले लेता हूं। यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस सी। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, सो एफ इज इक्वल टू 2 बाई पाई। एफ मतलब क्या है, फंक्शन है, एफ मतलब वही है, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स, ये एफ लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, इट डजंट मैटर। सो मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ मतलब एफ ऑफ एक्स ही है, 2 बाई पाई मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई, बोलो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। So this is the standard formula which is there in slide of prerequisite, जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें है ये 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, ठीक है। अब ये इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में क्या है, f ऑफ x था, मुझे ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, मुझे f ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो तो मिल गई ना यहाँ पे, हाँ। अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये मिल जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ x बाय a c। हाँ, अभी इसके आगे भी एक और ट्रिक है, बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, यू विल हैव दिस वैल्यू ऑफ f ऑफ x, आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिल रही है, बट वो इन टर्म्स ऑफ c आ रही है, आर्बिट्री कांस्टेंट आ रही है, तो आपको यहाँ पे c कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हाउ यू कैलकुलेट c, इसके आगे बस आपको c कैलकुलेट करना है, टू फाइंड c, हाउ यू कैलकुलेट c, एनीवन, how you calculate c। तो c कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको कहां पे आना है, यहां पे आना है, इस इक्वेशन 1 पे आना है, जहां से आपने डिवाइस रूल का यूज किया था। ओके, अभी आप अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे अभी बस यहाँ पे क्या चाहिए, ओके, आई जस्ट वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर पर्टिकुलर एक्स, मुझे एक ऐसा एक्स बोलो, टेल मी वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए मेरे पास इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई जस्ट वांट वन वैल्यू ऑफ एक्स, आप एक्स कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 100 कुछ भी नंबर ले सकते हो, बट जैसे वो नंबर मैं पुट करता हूं मेरे पास इमीडिएटली इंटीग्रेशन की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ये सॉल्व होकर मेरे पास एक नंबर आना चाहिए। कैन यू टेल मी अ सिंपल वैल्यू, टेल मी अ एक्स फॉर विच यू विल गेट द एफ ऑफ एक्स, नहीं समझ, हाँ। अब देखो मैं, ओके, जीरो कैसे उसने सिलेक्ट किया था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप यहां पे जस्ट फोकस ऑन दिस इंटीग्रल, मुझे ये इंटीग्रल, मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे या सिंपली मुझे एक ऐसा एक्स कैलकुलेट करना है, ओके, जिस एक्स के लिए इंटीग्रल जल्दी से सॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं वो एक्स जीरो लेता हूं, ओके, अगर मैं वो एक्स जीरो लेता हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये आपको थोड़ा वर्कआउट करना होगा, ओके, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं, ज्यादातर केस में जीरो वर्क करता है, ठीक है। सो हियर इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज जीरो, इट मींस f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। आप देखो इक्वेशन 1 में अगर मैं जीरो पुट करता हूं, लेफ्ट साइड में f ऑफ जीरो आता है, राइट साइड में जीरो मिलता है, ठीक है, तो वही मैं यूज करने वाला हूं नीचे। दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल कंडीशन, दोज हू डोंट नो, ठीक है। सो जस्ट पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1, ओके, क्या मिल रहा है फिर आपको वहां पे, f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो मिल रही है। अभी आप क्या करो, ये सारी चीजें यूज करो, तो इक्वेशन 2 का यूज करो, इक्वेशन 2 से f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन 2 से f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 2 बाय पाई tan इनवर्स ऑफ 0 बाय a प्लस c इक्वल टू 0। ये कैसे लिखा आपने, फ्रॉम 2, है ना। अभी tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, तो 0 प्लस c इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज योर c इज इक्वल टू 0। जैसे आपको c कैलकुलेट करना है, और जैसे आपको c मिल जाता है, ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज c इज 0, देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज दिस ओनली, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय पाई tan इनवर्स ऑफ
एक्स अपॉन ए। आई नो इट इज़ नॉट दैट मच ट्रिवियल, ठीक है, तो इसलिए आपको हार्डली एक या दो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। अगर आप उतनी ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो इनफ है, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि दिस थिंग इज टोटली न्यू फॉर यू, ये आपने कभी लर्न नहीं किया कि ये सब कुछ मैं कैसे कर रहा हूँ, बट फिर भी मैंने अपनी ओर से 100% देके एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा बेस आपका इतना नहीं है, तो जितना आपको इसमें से समझ में आ रहा है, एटलीस्ट यू प्रिपेयर दिस वन एग्जाम्पल, और एक और मैं आपको देने वाला हूँ। प्रिपेयर ओनली दिस 2 एग्जाम्पल, दैट इज इनफ एज फार एज द DOAS रूल इज कंसर्न, ठीक है। ज़्यादा आने के चांसेस उतने नहीं है, बट कुछ, क्योंकि क्या इसकी लेंथ स्मॉल है तो एनीथिंग मिला, कुछ भी हो सकता है बाद में। ओके, तो देखता हूँ अगर कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। तो ये इतना भी आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो इनफ है। एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, बस मैं लैम्बडा की जगह पे एक्स लेने वाला हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ ना, वो सिमिलर है, बस यहाँ पे मैं एक्स लेने वाला हूँ। आई थिंक वो सेम ही है, नहीं नहीं वो भी सेम है। सो टू प्रिपेयर ओनली दिस, एक ही एग्जाम्पल जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर कोई मिल जाता तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके, आई थिंक इसके बाद बस एक ही टॉपिक रिमेनिंग है,